Hello students and welcome back again. And today in this video tutorial we are going to discuss about the accessory digestive glands, and we are going to discuss about liver and pancreas. Yesterday the major digestive gland, which is salivary gland, gastric gland and intestinal gland, has been discussed. See, liver and pancreas are accessory digestive gland because the only function is not to control digestion only. They have to do some better things as well. Whereas gastric gland, salivary gland and intestinal gland are meant to secrete digestive juices. So in accessory digestive gland, we are going to start first with liver and then with pancreas. Accessory digestive glands. First we are going to discuss about liver, structure of liver, structure of hepatic lobule and functions of liver, and then we will be discussing about pancreas, the exocrine part of pancreas and endocrine part of pancreas. So let me start with liver. Liver, other term for liver is hepa, as other term for lungs is pulmon, other term for kidney is renal. Similarly, other term for liver is hepa. Liver is endodermal in origin and is situated in the right part of our abdominal cavity. So just below diaphragm, on the left side is stomach and on the right side is liver, and due to the position of liver on the right side, the right lung has been shifted little bit upward and the right kidney has been shifted little bit downward. So when we talk about location, it is present in upper right corner of abdominal cavity, just below diaphragm. Liver by weight, it weighs about 1.3 to 1.5 kg. It is slightly heavier in case of male and little bit lighter in case of female. Without any surprise, liver is largest endocrine gland. Student used to answer that it is the largest organ. Answer is no. The largest organ is skin and largest endocrine gland is liver. So if I make a structure of liver, external structure of liver, so liver consists of two major lobes which we call hepatic lobes, and let's say this is diaphragm here, and below diaphragm is a large lobe of liver which we call right lobe, and then is relatively smaller lobe of liver which we call left lobe. So there are two lobes of liver. About 5/6 part of the liver is right lobe only, and only 1/6 part of the liver is left lobe. Both the lobes are attached with each other with a ligamentous structure which we call falciform ligament, and this ligament is continued with the peritoneum, as well as it keep our liver lobe fuses with the diaphragm. So this structure here is falciform ligament, and the structure in red color is diaphragm, and this is how our liver is situated. The lobe is right lobe and left lobe, and right lobe further is divided into three different areas. It's something like this, that there is right proper, quadrate and caudate lobe. And here
on the lower side, on the posterior side of liver, there is an indent, and this indent harbors a sac-like structure, and that sac-like structure is gallbladder, to be very exact. So gallbladder is situated at the lower part of liver, and from gallbladder के लिए वर्ड यूज करते हैं पाउच लाइक, तो सिस्ट वर्ड यूज करते हैं, and the duct which has been coming outside would be cystic duct. We will be discussing that in other diagram. Whereas left lobe is only divided into superior and inferior. There are 3 lobes this side and 2 lobes that side. Anyways, there is no significance of learning all these things. So liver is the largest endocrine gland, not endocrine. Why I am calling वैसे endocrine भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, because liver make a lot of hormones. So please mention here not endocrine, please mention here largest gland, because endocrine function of liver is not that much significant. So largest gland of body is liver. So liver का position, liver का origin, weight and size, done up to here, and then liver के 2 lobes और falciform ligament का concept. अब लीवर के अंदर होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिनको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, एंड एज फार एज द नंबर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल इज कंसर्न्ड, दे आर अबाउट 1 मिलियन ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर पढ़ते हैं, आंसर वुड बी हेपेटिक लोब्यूल. सो इनसाइड दिस लीवर, इनसाइड दैट स्ट्रक्चर, देयर आर सो मेनी पॉलीगोनल स्ट्रक्चर which are present here and there, and when you cut a section of liver, you find that hepatic lobule. So let me now explain the structure of hepatic lobule and the associated structure with hepatic lobules. See, when we are learning kidney, we are more concerned about learning the structure of nephron. Similarly, when we are learning liver, we must be more concerned about learning the structure of hepatic lobule. So hepatic lobule is regarded as structural and functional unit of liver, and each hepatic lobule is polygonal in shape. They could be your pentagonal, they could be your hexagonal. Most of them are hexagonal in shape. So हम pentagonal, hexagonal वर्ड ना यूज करके पॉलीगोनल वर्ड यूज कर लेंगे, और क्या क्या स्पेशलाइज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. सो इफ आई ड्रॉ अ हेपेटिक लोब्यूल हियर, पॉलीगोनल इन शेप होगा, तो लेट्स से आई एम मेकिंग few corners of hepatic lobule which would be like this. Let's say that is a hepatic lobule. Now the characteristic feature of mammalian liver is that over this hepatic lobule there is a connective tissue sheath which we call Gleason's capsule, and presence of Gleason capsule over hepatic lobule is a characteristic feature ऑफ ममेलियन लीवर. तो आप याद रखेंगे, लीवर के ऊपर ग्लाइसिन कैप्सूल नहीं होता है, लीवर के अंदर जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं उनके अंदर ग्लाइसिन कैप्सूल होता है. और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कनेक्टिव टिश्यू में भी ग्लाइसिन कैप्सूल का हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है. तो अ फिब्रस शीथ विच एनक्लोजेस आवर हेपेटिक लोब्यूल इज ग्लाइसिन कैप्सूल. मैं सारे एरियाज में थिक नहीं कर रहा हूँ, पर आप ऐसे ही मान के चलेंगे ये चारों तरफ सेम थिकनेस की है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा थिक है कहीं पे कम थिक है. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर इज ग्लाइसन्स कैप्सूल. सो ग्लाइसन्स कैप्सूल इज अ fibrous covering which is characteristic feature of mammalian liver, right? Now in the center of Gleason's capsule is situated a branch of hepatic vein, and hepatic vein is the blood vessel which would be taking blood from liver
to heart, there is a branch of hepatic vein, and all these branches would be combining together, would be making hepatic vein. Inside hepatic lobules are present hepatocyte, and hepatocytes are liver cell, and hepatocytes are present in form of cord, and in a cord there are two rows of hepatocyte. तो हेपेटोसाइट का जो अरेंजमेंट होगा वो लाइक रेडियल कैनाल सा होगा. हेपेटोसाइट अरेंज इन फॉर्म ऑफ रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल ही कोड बनाता है, और एक कोड के अंदर दो रो होता है हेपेटोसाइट का. व्हाट आई एम टेलिंग यू, लेट्स से देयर इज अ रेडियल कैनाल of hepatocyte, and in each radial canal there would be two rows like this. इसको बोलते हैं हेपेटिक कोड. तो जो आपके पास हेपेटोसाइट होती है वो कोड के अंदर प्रेजेंट, वो कोड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. सिमिलरली देयर वुड बी अदर हेपेटिक कोड लाइक दिस. इज दैट क्लियर? एंड देयर वुड बी as many as hepatic code which are present inside liver. I am making these hepatic code at a distance. This is one hepatic code, दो होंगी. This is second hepatic code, third hepatic code, and let's say this is other hepatic code. So there would be so many hepatic code which are present here. I am telling you that these lobules are polygonal in shape. So what are these cells present there? Please name them. Hepatocyte. Hepatic cord containing hepatocytes. Right? Now between two hepatic cord, let's say I am talking about it. अगर आप इसको और देखोगे तो इट इज एक्चुअली लाइक दिस. आपके पास ये एक हेपेटिक लोब्यूल है और हेपेटिक कोड कुछ ऐसे होते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? पर मैंने मैग्नीफाई करके समझने के लिए इनको दूर दूर बनाया. नाउ बिटवीन दीज टू हेपेटिक कोड इज ए स्पेस हेयर, एंड दैट स्पेस आई विल बी टेलिंग यू. दिस स्पेस, लेट्स से हम इसको इमेजिन करते हैं. ये स्पेस दो हेपेटिक कोड के बीच में, एक हेपेटिक कोड ये हो गया और हेपेटिक कोड ये हो गया. इफ आई टॉक अबाउट दिस स्पेस इज ब्लड फील्ड. और ब्लड फील्ड स्पेस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? साइनस. तो दीज आर लीवर साइनोसॉइड्स. मैंने बहुत बड़ा बता दिया पर वो बहुत ही माइन्यूट से साइनोसॉइड्स होते हैं. सो लेट्स से दिस इज लीवर साइनोसॉइड और हेपेटिक साइनोसॉइड. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं उसको इतना वाइडर बना रहा हूं, ठीक है? अब जो साइनोसॉइड होता है वो एक एरिया होता है जो ब्लड से भरा हुआ है, और जो एरिया ब्लड से भरा होता है उसकी लाइनिंग में स्क्वेमस सेल होती है जिनको बोलते हैं एंडोथेलियम. सो यहां पर हो गया आपके पास रेड कलर में साइनोसोडल एंडोथेलियल सेल. साइनोसोडल एंडोथेलियल सेल. सो दिस एरिया इज साइनोसॉइड. तो जब भी हेपेटिक कोड की बात करेंगे, एक हेपेटिक कोड दूसरा हेपेटिक कोड, और इन दोनों हेपेटिक कोड के बीच में क्या होगा? साइनोसॉइड्स. द हेपेटिक कोड कुड बी लाइक दिस एज वेल. लेट्स से दिस इज अनदर हेपेटिक कोड हियर, राइट? दे आर गोइंग अप टू ब्रांच ऑफ दिस ब्लड वेसल. व्हाट इज दिस? ब्रांच ऑफ hepatic vein. So बच्चे this is hepatic code. This complete is hepatic code. This complete is hepatic code. तो this space is sinusoid. This space is sinusoid. हमने कुछ इसको मैग्नीफाई कर दिया. अब जो ये साइनोसॉइड होगा इसकी लाइनिंग हेपेटोसाइट और साइनोसॉइड के बीच में होंगे यहाँ पे एंडोथेलियल सेल. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज से यस और नो. मुझे लगा आपने यस ही बोला है. Now attention please. There is a space between hepatocyte and sinusoid. There is a space between hepatocyte and endothelial cell of sinusoid, and this space is known as
पैरासाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डाइसे और सिंपली कॉल्ड इट स्पेस ऑफ डाइसे। अटेंशन प्लीज। तो स्पेस ऑफ डाइसे क्या होता है बच्चों, जो भी हेपेटिक कोड है और एंडोथेलियम ऑफ साइनोसॉइड है उसके बीच में होता है पैरासाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डाइसे। दिस इज आल्सो पैरासाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डाइसे। और इस स्पेस ऑफ डाइसो के बीच में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, शायद आप उनको पहचान पाए। देयर आर सम स्पेशल सेल्स and they are very nasty in their function. They are phagocytotic in nature. They are the macrophages of liver. What is the name? Please say Kupffer cell. So this parasinosodal space of Dicey contains macrophages of liver, which are Kupffer cell, and it also contains some other type of cell. And these type of cell are associated with the storage of fat, so we call that fat cell. तो parasinosodal space of Dicey or space of Dicey, which is actually between the hepatic cord and sinusoid, that space of Dicey consists of two type of cell. One is macrophages, that is Kupffer cell. There are certain Kupffer cell which are present there, and there are certain fat cell which are present there. इतना समझ में आया बच्चों? Now here let's say I am taking off some glycine capsule from one corner and I am making this layer like this. Here is present three special duct, three special pipe system is there. And what are the name of these pipe? This is important to remember. मैं फंक्शन के साथ साथ नाम भी बताता रहूंगा, ठीक है? और जिस स्पेस के अंदर ये पाइप होते हैं ऑन द कॉर्नर्स, उन स्पेस को भी नाम बता दूंगा। ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, और कैसा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीडेटेड ब्लड। क्या नाम होगा इसका? दिस इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। फिर ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड लेके आ रही डाइजेस्टिव सिस्टम से, और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड लेके आती है वो होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। दिस इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। सो दो वेसल्स हैं जिनके सिक्रेशन टूवर्ड द सेंटर जा रहे हैं, और एक वेसल होगा जिसका सिक्रेशन अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है। माने लीवर से कोई चीज बाहर लेके जाएगी, इसका नाम होता है बाइल डक्ट, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, आई मस्ट से ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। तो जो लीवर होता है, जो आपका पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, इसके कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पर तीन डक्ट होंगी, तीन वेसल्स होंगी। दो वेसल के सिक्रेशन टुवर्ड द सेंटर आते हैं और एक वेसल का सिक्रेशन अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आप समझ रहे होंगे। दे आर टू विच आर टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल, एंड देयर इज वन विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल, राइट। सेंट्रीफ्यूगल किसका होता है? बाइल डक्ट का। और सेंट्रीपिटल किसका होता है? हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक पोर्टल वेन। ये जो ये स्पेस होता है, अच्छा इसको बोलते हैं पोर्टल ट्राइएड। ये जो तीन आपके पास डक्ट है इसको बोलते हैं पोर्टल ट्राइएड। So this branch of hepatic artery, branch of bile duct and branch of hepatic portal vein make up a portal triad. Quick revision. हेपेटिक लोब्यूल का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पॉलीगोनल होता है, ग्लाइसिन कैप्सूल की कवरिंग होती है, सेंटर में हेपेटिक वेन का ब्रांच होता है, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर होती है हेपेटोसाइट जो इन फॉर्म ऑफ कोड होती है। हर एक कोड रेडियली अरेंज होती है, उसके अंदर दो रोज ऑफ हेपेटोसाइट होती है। अभी जो दो ये जो रो ऑफ हेपेटोसाइट है, अभी मैंने इस स्पेस की बात की ही नहीं है आपसे। अभी मैंने ये बात की है कि इस कैनाल और इस कैनाल के बीच में, या इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के बीच में क्या होता है। दो हेपेटोसाइट की कॉर्ड के बीच में होता है साइनोसॉइड जो लाइन होता है एंडोथेलियल सेल,
वो एंडोथीलियल सेल और कोड के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है स्पेस ऑफ डाइसे, और स्पेस ऑफ डाइसे में होती है फैट सेल एंड कफर सेल। देन ग्लाइसिन कैप्सूल की कवरिंग के अंदर ही एट द कॉर्नर पोर्टल ट्राइएड होता है। पोर्टल ट्राइएड में हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन का ब्रांच होगा जो ब्लड को लेके आ रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और एक बाइल डक्ट होगा जो ब्लड को लेके जा रही है अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये जो स्पेस होता है जिसके अंदर पोर्टल ट्राइएड होता है उसको बोलते हैं स्पेस ऑफ मॉल, इन स्पेस ऑफ मॉल। तो स्पेस ऑफ मॉल कहाँ होता है? दिस है इज स्पेस ऑफ मॉल, जहाँ पे पोर्टल ट्राइएड है। और स्पेस ऑफ डाइसे कहाँ है? जहाँ पर फैट सेल एंड कफर सेल है। ठीक है बच्चों, अब इसको ही थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई अगर करके यहाँ पे बनाऊँ एक स्ट्रक्चर, लेट मी टेक दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड एंड लेट मी सिंप्लीफाई दैट डायग्राम। शायद आपको और चीजें कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। ऑलराइट, लेट्स से दिस हेयर is branch of hepatic portal vein. I guess you are paying your full attention here. This here is branch of hepatic vein, not portal vein, hepatic vein. ठीक है बेटा, और hepatic vein से there is a hepatic cord, और इस hepatic cord के अंदर hepatocyte are arranged in 2 rows। एक हेपेटिक कोड ये कंप्लीट हेपेटिक कोड हो गया, और दूसरा हेपेटिक कोड शायद यहां पर है। लेट से, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला सेल उस साइड होगा। अब 2 हेपेटिक कोड के बीच में यहां पर होगी एंडोथीलियल सेल, और यहां पर भी होगी एंडोथीलियल सेल, राइट? नाउ देयर इज ए स्पेस व्हिच आई एम लेबलिंग ए, एंड दैट इज स्पेस ऑफ डाइसे, और इसके अंदर होता है आपके पास मैक्रोफेजेस एंड फैट सेल। देन ऑब्वियसली स्पेस ऑफ डाइसे इधर भी होगा। इन ऑर्डर टू मेक थिंग सिंपलर, दिस इज स्पेस ऑफ डाइसे विच इज प्रेजेंट हियर एज वेल। ठीक है, अब एक आपके पास ब्रांच होता है जो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी, और कैसा ब्लड लेके आ रहा होगा? ऑक्सीडेंटेड ब्लड। तो सीधा कहां पोर होगा बेटा? साइनस के अंदर। उसके बाद एक आपके पास यहां पर ओपनिंग है, और ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये सारे के सारे एक साइनस में भी खुलते हैं, अलग अलग साइनस में। मैं तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए अलग अलग में बना रहा हूं यहां पे। और ये भी कहां पोर करता है ब्लड? इनटू द साइनस। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड कहां से लेके आ रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, और हेपेटिक आर्टरी हार्ट से। और एक आपके पास यहां पर डक्ट होता है which actually carry away secretion away from the liver, और ये होता है बाइल डक्ट। तो इन तीनों के लिए मैंने वर्ड यूज किया पोर्टल ट्राइएड, और जिस एरिया में ये होता है उसको बोलते हैं बेटा स्पेस ऑफ मॉल। नाउ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ब्लड पास कर रहा है फ्रॉम द साइनोसॉइड्स, it is constantly getting filtered like this। जब ब्लड पास कर रहा है फ्रॉम द साइनोसॉइड, it is constantly getting filtered, and this filtered blood is processed by the action of hepatocyte। the filtered blood is processed by the action of hepatocyte। जो भी ब्लड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ अनवांटेड है, उनको हेपेटोसाइट पोर कर देती है यहां पर, और प्यूरिफाइड ब्लड चला जाता है आपका इन दिस हेपेटिक वेन। समझ रहे बात? ये जो ये डक्ट है इसको बोलते हैं बेटा बाइल कैनाल, और जो भी हेपेटोसाइट के अपने सिक्रेशन है और जो ब्लड से फिल्टर होके आ रहा है वो सारा का सारा बाइल कैनाल में चला जाएगा,
वो इवेंचुअली बाइल की तरह बाहर आ जाएगा। सो जो ये वाला स्पेस है, दिस इज एक्चुअली बाइल कैनाल। डू यू गॉट दिस थिंग? एक बार और रिवाइज करा दूं, ठीक है। हेपेटिक वेन, दिस इज वन हेपेटिक कोड। हेपेटिक कोड के बीच में, हेपेटिक कोड के अंदर दो रो ऑफ सेल होती है और बीच में जो कैनाल होती है वो होती है बाइल कैनाल। दो हेपेटिक कोड के बीच में जो स्पेस होता है वो साइनसोइड्स होता है और साइनसोइड्स लाइन करता है एंडोथेलियल सेल से। और हेपेटोसाइट की जो रो है और साइनसोइड्स की जो रो, एंडोथेलियल सेल और साइनसोइड की जो रो है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो होता है स्पेस ऑफ डाइसे। वहां पर होती है आपकी कफर सेल एंड फैट सेल। आप समझेंगे अगर फैट ज्यादा स्टोर होना शुरू हो गया तो हेपेटोसाइट डैमेज होनी शुरू हो जाती है, हेपेटोसाइट के ऊपर खूब प्रेशर आएगा, उनका फंक्शनिंग खत्म हो जाएगा। अब जो भी ब्लड लीवर के पास आ रहा है, चाहे वो हेपेटिक आर्टरी लेके आ रही है, चाहे वो हेपेटिक पोर्टल वेन लेके जा रही है, तो डाइजेशन के बाद जो कुछ एब्जॉर्ब हुआ है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द थिंग लीवर के पास जाते हैं टू गेट डिटॉक्सिफाइड। और साइनसोइड ब्लड को फिल्टर करते रहती है, स्पेस ऑफ मॉल के अंदर देगा, स्पेस ऑफ डाइसे के अंदर देगा। डाइसे के अंदर मैक्रोफेज है, वो भी उस पर एक्ट कर सकती हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो चली जाएंगी आपके बाइल कैनाल में, और बाइल कैनाल से सिक्रेशन जो है अवे फ्रॉम द लिवर जा रहा है। तो अगर मेरे बॉडी के अंदर कोई आरबीसी डिस्ट्रक्ट हुआ है और उस आरबीसी से हीमोग्लोबिन बाहर निकल गया है और हीम ब्रेक डाउन होकर बिलिरुबिन बिलिरुबिन बना रहा है, तो बिलिरुबिन बिलिरुबिन कौन लेके आ रहा है? ब्लड। और ब्लड जब लीवर के पास जाएगा तो साइनसोइड्स के जो एंडोथेलियल सेल है वो बिलिरुबिन बिलिरुबिन को फिल्टर कर देंगे और हेपेटोसाइट उनको ऐड कर देगा इन बाइल कैनाल। सिर्फ हेपेटोसाइट ऐड ही नहीं करता, हम पढ़ेंगे लीवर इज परफॉर्मिंग सो मेनी फंक्शंस एंड ऑल आर द फंक्शंस ऑफ हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल, रिमेंबर दैट थिंग। सो क्लियर हुआ? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल विच आई नो इज दिस वन। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर, और शायद अभी आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लीवर कितनी सप्लाई से ब्लड रिसीव करता है, योर आंसर वुड बी 2 सप्लाई। व्हाट आर दीज सप्लाईज? सर वन इज हार्ट, सेकंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्ट से कौन लेके आता है? आंसर वुड बी हेपेटिक आर्टरी। डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन लेके आता है? आंसर वुड बी हेपेटिक पोर्टल वेन। और लीवर से बाहर कौन लेके जाता है? हेपेटिक वेन। लीवर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हेपेटिक लोब्यूल, जिसके अंदर होते हैं हेपेटोसाइट एंड दे आर डूइंग ऑल द फंक्शंस। ठीक है बच्चों, अब इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर लीवर रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 साइड्स, ये याद रख लेना है। अब एक और डायग्राम बना देता हूं जिससे ना बाइल डक्ट आगे निकल के कैसे बाइल लेके जा रही है हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला के अंदर। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये रब कर रहा हूं मैं बोर्ड क्लीन करके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, so liver, pancreas and then physiology of digestion and I hope आपका breathing and exchange of gases के जो concept है वो भी साथ साथ पूरे हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी learning ज़्यादा हो रही है आजकल, but you got a very young brain, और कोई बात नहीं, आप उसको utilize कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और अभी सर्दी में ना ये मार्कर का जो इंक है वो स्टिक कर जाता है बोर्ड पर, तो बड़ी दिक्कत होती है बोर्ड को साफ करने में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, बट डोंट वरी। जब लीवर को पढ़ते हैं ना बच्चों, लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप ऐसे याद रख के चलेंगे कि जो लीवर होता है वो किचन ऑफ अवर बॉडी होता है। ठीक है, तो उसको ना नॉर्मली बोलते हैं किचन हाउस ऑफ अवर बॉडी। तो जितनी भी नई चीज़ें बनती हैं, मेनली जब मैं बात करूँगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, तो मेजर जो साइट होता है वो लीवर और हेपेटोसाइट ही होता है। तो मेरे घर में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो किचन में, एंड देन जो देखो एक्सक्रीटिव ऑर्गन किडनी है, दैट इज ओके, बट लीवर आल्सो परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस इन एक्सक्रीशन। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड में लीवर इंपॉर्टेंट है, और जो यूरिया बनता है जिसको किडनी बाहर निकाल रही है वो लीवर में बनता है। हेपेटोसाइट्स की एक्टिविटी होती है
हेपेटोसाइट के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो बाकी बॉडी सेल में नहीं होता है, उसका नाम होगा आर्जिनेज। और जो आर्जिनेज होता है वो क्रैब हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल जो यूरिया साइकिल है उसका लास्ट एंजाइम होता है। तो यूरिया साइकिल भी लिवर के अंदर होगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, हर एक सेल पर्सिक एसिड बना रही है उसको बाहर करेगा, एंड सो ऑन। ओके, फाइनली आवर बोर्ड इज क्लियर नाउ, राइट? ओके, सो आई वाज टेलिंग यू वन मोर डायग्राम हियर। तो लेट अस इमेजिन दिस इज अवर right lobe of liver. Let me make it in center. This is our right lobe of liver, which make up about 5-6 part, and this is our left lobe of liver, making up about 1/6 part. And here is falciform ligament. I am not making it very fancy. And on the posterior part, here is a sac-like structure which is present here. Remember, gallbladder is present beneath the liver, and this is gallbladder, right? All right. And this here is your C-shaped duodenum. मैं थोड़ा और नीचे करके बनाता हूँ इसको. This here is your C-shaped limb of C-shaped duodenum. Is that clear? And this here are those leaf-like structure which we call pancreas, and this is the duct, major duct which has been coming from pancreas. ठीक है? Now जो duct सारे hepatic lobule of लेफ्ट लोब से आएंगे उसको बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये डक्ट है आपकी राइट हेपेटिक डक्ट। तो सारी बाइल डक्ट आपस में मिलके लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट बना लेती हैं। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, और दोनों हेपेटिक डक्ट आपस में मिलके बनाएंगे यहां पर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। सो दिस हेयर इज कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब बच्चों जो गॉल ब्लेडर से डक्ट अराइज हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्ट इज फॉर ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो गॉल ब्लेडर से जो डक्ट अराइज होता है उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलने के बाद जो नया डक्ट बनेगा इसको बोले कॉमन बाइल डक्ट। दिस हियर इज कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट जिसका नाम होता है डक्टस कॉलेडोकस, वो जाके कंबाइन करता है विद द मेजर डक्ट कमिंग फ्रॉम पैनक्रियाज, इसका नाम होता है डक्ट ऑफ विल्सन, विद द विल्सन डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। और यहां पे एक सैक लाइक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। दिस इज हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला, और लेट्स कॉल इट एम्पुला ऑफ वेटर। और हेपेटोपैनक्रिएटिक एम्पुला से जो डक्ट अराइज होती है और ओपन होती है ड्यूडेनम में, इसको बोलते हैं हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। सो डक्ट इन ग्रीन इज हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये सारा डायग्राम बनाने का रीजन है कि मैं आपको कुछ स्पिंटर बताना चाहता हूं। दिस हियर इज ड्यूडेनम, दिस इज सी शेप लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम, राइट? ड्यूडेनम पायरोलिक रीजन, एंड लेट्स से यहाँ पे ड्यूडेनम वाला साइड है। तो कॉमन बाइल डक्ट डक्टस कॉलेडोकस क्लियर हुआ, सिस्टिक डक्ट क्लियर हुआ। नो फन इन टेलिंग दैट दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज गॉल ब्लेडर हुज मेजर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ बाइल। तो बाइल लीवर बनाता है ऐसे सब्सटेंस जो बाइल के फॉर्मेशन को बढ़ा दे लिवर से,
उन्हें बोलते हैं कोलिरेटिक सब्सटेंसेस। ये ना मैंने आगे कहीं लेक्चर वगैरह जो आगे के लेक्चर है या फिर आपके जो हार्मोन रेगुलेशन है वहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। और जो गॉल ब्लेडर से रिलीज को बढ़ा दे उसको बोलते हैं कोलेगॉग, आगे मिल जाएगा ये आपको। खैर, अब एक स्पिंक्टर होता है बेटा यहाँ पर जो कंट्रोल करता है एम्प्टिंग ऑफ बाइल इन हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। सो B4 बाइल होता है, B4 होता है बॉयडन, इसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो जो स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन है वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट और डक्टस कोलेडोकस इन हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। और एक स्पिंक्टर होता है यहां पर जो बाइल एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस का पैसेज को कंट्रोल करता है इन ड्यूडेनम। और ये जो स्पिंक्टर है यहाँ पर, ये तो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो स्पिंक्टर है यहाँ पर इसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पर होता है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग ओवर ड्यूडेनम पर। जब हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम पे ओपन हो रहा है वहाँ पे स्पिंक्टर ऑफ ओडाई होगा। और स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ होगा? जहाँ कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रहा है पैनक्रियाज में आके। ठीक है, और इस डक्ट का नाम है मैं आगे पैनक्रिया में ही बता दूंगा, डक्ट ऑफ विसंग। तो आगे पैनक्रिया में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक डक्ट डायरेक्टली पैनक्रिया से आगे ओपन होता है ड्यूडेनम में, इसको बोलते हैं एसोसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो एसेसरी है। और डक्ट ऑफ विसंग मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है बच्चों, सो लीवर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब पढ़ लेते हैं काम की चीजें और लीवर के फंक्शंस। देखो, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है, तो लीवर के जो जूस होता है उसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कहते। पर बाइल नहीं होगा तो सिर्फ फैट का डाइजेशन ही नहीं, मेजरली तो फैट का, पर बाकी भी जो आपके न्यूट्रिएंट्स है कि उन एंजाइम को एक्ट करने के लिए जो भी पैनक्रियाज से आ रहे हैं, इंटेस्टाइन से आ रहे हैं, उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट बाइल प्रोवाइड करता है, बाइल एल्कलिनिटी भी प्रोवाइड करता है वहाँ पे। तो फैट डाइजेशन के साथ साथ अल्कलाइन इन्वायरमेंट भी करता है। तो बाइल फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ना शुरू कर देते हैं वन बाय वन, एंड जो भी मेजर फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। अगर लीवर के फंक्शन को डिस्कस करें तो आई गेस 1-1.5 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा हमारा सिर्फ फंक्शन में। तो मेजर फंक्शन डिस्कस करता चला जाऊंगा। एक्चुअली बाइल तो पढ़ ही लेंगे, बाइल, यूरिया सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, जितने भी याद आते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, वो सारे के सारे हम एटलीस्ट पढ़ लेंगे। स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ विटामिन, ये सारे के सारे लीवर फंक्शन करता रहता है। ठीक है, लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नेचर को पता है लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन जिससे पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो लीवर को ख़राब करती है, पर लीवर ऐसा है कि वो रीजनरेट कर लेता है अप टू एन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है आप उसको ख़राब करते रहिए, वो हमेशा रीजनरेट करेगा। जिस दिन रीजनरेशन कम हो गया, ख़राब ज़्यादा हो रहा है, उस दिन आपको पैथोलॉजी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो लीवर सिरोसिस हो, लीवर कैंसर हो, फैटी लीवर हो, एल्कोहल, लीवर डो नॉट लाइक दैट मच एल्कोहल, या लीवर लाइक एल्कोहल अलॉट, तो ज़्यादा खुशी में वो मोटा वोटा हो जाता। खैर एनीवेज, तो मैं शुरू करता हूँ बेटा फंक्शन ऑफ लीवर से। और जब फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ बाइल, जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब बाइल के अंदर क्या क्या होता है? बाइल एक अल्कलाइन सिक्रेशन है जिसका पीएच रेंज करता है। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि बाइल का पीएच जब लीवर में बनता है तो 8.4 होता है और गॉल ब्लैडर में जाके 7.4 होता है एक्चुअली। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है पीएच मेंटेनेंस करना, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ दिस। पर मैं यहाँ पे नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, अल्कलाइन पीएच होता है 7.4 टू 7.7 की रेंज में। ठीक है, अब जो बाइल होता है उसके अंदर होते हैं बेटा बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, सोडियम, पोटाशियम एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मैं इसी में लिख दूंगा सॉल्ट को एक्चुअली। अब सबसे पहले शुरू करते हैं सॉल्ट के बारे में। देखो, सॉल्ट होते हैं ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट सॉल्ट,
एंड टेरोकोलेट सॉल्ट। और ग्लाइकोलेट और टेरोकोलेट जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के साथ रहते हैं। तो सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट और पोटेशियम टेरोकोलेट। और इन सॉल्ट का ही काम होता है इमल्सिफिकेशन का। तो मेनली बाइल के अंदर इमल्सिफिकेशन कौन करता है? आंसर वुड बी बाइल सॉल्ट। ठीक है। एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टेरोकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड और ये दोनों स्ट्रोड इन नेचर होते हैं। स्टीरोल एक्चुअली, दे आर ऑल स्टीरोल इन नेचर। एंड टेरोकोलिक एसिड। फिर होते हैं उसके अंदर पिगमेंट, और पिगमेंट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीम है। तो जो आपके पास येलो कलर का होता है वो होता है बिलिरुबिन, आई एम मेंशनिंग वाई हियर। और जो ग्रीन कलर का होता है वो होता है बिलीविरडिन। तो बिलीविरडिन इज ग्रीन इन कलर एंड बिलिरुबिन इज येलो इन कलर। देन कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। आप याद रखना, देयर इज नो एंजाइम इन बाइल, बट बाइल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। पैनक्रिएटिक लाइपेज को बाइल एक्टिवेट करता है। तो इसको ट्रू डाइजेस्टिव यूज नहीं कहते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है बाइल, और बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन कर देना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। सेकंड और क्या फंक्शन करता है? इट इज द मेजर साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेजर साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। देन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन भी करता है ग्लूकोज की उसमें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन एट द टाइम ऑफ नीड इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागोन। ये दोनों ना पैनक्रियास से आ रहे हैं एंजाइम, हार्मोन, इनटू ग्लूकोज। ठीक है। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। चाहे वो अमाइनो एसिड हो या वो फैटी एसिड हो, उन सब से ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, लीवर, हेपेटोसाइट। और ग्लाइकोजिनोजेनेसिस, that is gluconeogenesis and that is glyconeogenesis। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं, जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है उसमें लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बना सकता है। ये कोई साइकिल भी पढ़ोगे आप थोड़ा सा चल के आगे मसल्स में। तो लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन प्रोड्यूस बाय लीवर। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन भी करता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज भी करता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज भी करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन भी करता है। सारे काम जो है ये कार्बोहाइड्रेट के हेपेटोसाइट ही कर रहे हैं। ठीक है। और सर बताइए और कुछ इसकी तारीफ जब आप कर ही रहे हैं, यूरिया साइकिल और यूरिया सिंथेसिस यहीं पर होता है। तो यूरिया सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल आता है वो डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से आता है, बाय डीएमिनेशन ऑफ एक्सिस अमाइनो एसिड, बाय डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देन लीवर जो है वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी काम करता है। ग्लाइकोजन के साथ साथ वो फैट भी स्टोर कर लेता है और फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर कर लेता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, और साथ साथ विटामिन B12 भी स्टोर करता है। ठीक है। देन जो आपका विटामिन ए है उसकी सिंथेसिस भी कर सकता है लीवर फ्रॉम बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन को
जो भी फूड में बीटा कैरोटीन आप खा रहे हैं उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है लीवर। जो विटामिन के है दैट इज प्रीकर्सर ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड क्लोटिंग का जब पढ़ते हैं आप केस, उसको भी कौन करता है? लीवर ही कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है, देन लीवर इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का केस ये पढ़ना बच्चों कि मोस्ट ऑफ द सेल इन अवर बॉडी मेक ए टॉक्सिक, जिसको बोलते हैं प्रसिक एसिड। और प्रसिक एसिड अगर मैं सही में बात करूं हाइड्रोजन साइनाइड है, और हाइड्रोजन साइनाइड इसको लीवर डिटॉक्सिफाई कर देता है और उसको पोटेशियम सल्फोसाइनेट में कन्वर्ट करता है, जिसको हमारा बॉडी बाद में एलिमिनेट कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रसिक एसिड आल्सो अकर इन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बाय लीवर। तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, यूरिया सिंथेसिस हो गया, स्टोरेज हो गया, कन्वर्जन ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। जितने भी आपके ब्लड एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो सारे के सारे लीवर में ही बनते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स। सारे प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबिन्स। जो एंटीबॉडी है वो तो बी सेल बनाएंगे, गामा ग्लोबिन्स एंटीबॉडीज। बाकी सारे चाहे वो आपका एल्बुमिन हो, फिब्रिनोजन हो, प्रोथ्रोम्बिन हो, या फिर आपका अल्फा ग्लोबुलिन हो, बीटा ग्लोबुलिन हो, ये सारे के सारे कौन बनाता है? लीवर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी लीवर बनाता है। फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये सारे के सारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो लीवर ही बनाता है। तो लीवर ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, सिंथेसिस न्यू सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और लीवर आपका ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजेन। इट्स ए ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोटीन। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी जब आप रास सिस्टम पढ़ेंगे कि इसको कैसे रेनिन कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। ये भी लीवर बनाता है। इवन हमारे इम्यून सिस्टम की जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो भी लीवर बनाता है। वो चलो खैर कितनी तारीफ करें हम लीवर की। अब तो जब लीवर का काम करेंगे, हम ना डाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी, ये भी ना भूलें हम। तो डाइजेशन में लीवर कोई एंजाइम नहीं बनाता, लीवर बाइल बनाता है जो दो काम करता है। एक तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक पीएच करेगा काइम का, और दूसरा बाइल इमल्सिफिकेशन करेगा, और तीसरा बाइल सॉल्ट एक्चुअली इमल्सिफिकेशन करते हैं, और बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेज को। और बाइल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं मेरे बॉडी में ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जैसे बिलिरुबिन बिलिरुबिन जो है वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं। बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, वी ऑल नो डैट। उनको भी कौन एलिमिनेट करता है? लीवर एलिमिनेट करता है। तो बच्चों यहाँ पर इन शॉर्ट, इन वेरी कॉन्साइज मैनर, आई जस्ट मेक यू लर्न अबाउट लीवर स्ट्रक्चर एंड लीवर फंक्शन। ठीक है बेटा, अब मैं शुरू करता हूँ पैनक्रियाज के बारे में। आई गेस हाफ एन आवर ही लगा होगा लीवर को पढ़ने में, लेट्स से 40 मिनट लग गए। नाउ जस्ट गिव मी 20-25 मिनट्स और 25 मिनट्स 20 मिनट्स। लेट मी टेल यू अबाउट पैनक्रियाज एंड द पैनक्रियाज बीइंग एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि पैनक्रियाज का काम सिर्फ डाइजेस्टिव जूस बनाना ही नहीं होता, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। लीवर को देखो अभी तो आप नहीं पढ़ोगे एज हेक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि लीवर को आप एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि लीवर को अभी ना आप एक्सोक्राइन की तरह पढ़ के जाते हो 12th तक। पर जब हायर क्लासेस में जाओगे, लीवर इज आल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर आर सर्टेन प्रोटीन विच एक्ट एज हार्मोन। तो लीवर को आगे चल के आप एंडोक्राइन की तरह भी पढ़ोगे, आगे चल के, नोट हियर। अभी तो याद रखो लीवर हेट्रोक्राइन नहीं होता है, वो एक्सोक्राइन ही है। अब जब हेट्रोक्राइन की बात करते हैं तो दो ही ग्लैंड हेट्रोक्राइन पढ़नी है अभी, एक होगा पैनक्रियाज और दूसरा होगा गोनैड, जो क्लास 12th में आएगा, टेस्टिस ओवरीज। मैं पैनक्रियाज शुरू करता हूँ अब। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, मैं क्लियर अप कर देता हूँ, फिर पैनक्रियाज शुरू करते हैं।
पैनक्रियाज कुछ पढ़ा है हमने पैनक्रियाज के बारे में? अब तक तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने ना। ग्लैंड्स में थोड़ा सा बात की थी पैनक्रियाज की कि भाई पैनक्रियाज एक तरह के हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज का लोकेशन, पैनक्रियाज के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव यूज बनाता है स्ट्रक्चर, और कौन सा एंडोक्राइन का काम करता है। देन पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव यूज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, और पैनक्रियाज के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, और पैनक्रियाज का सिक्रेशन कौन कौन से अदर नॉन पैनक्रियाटिक हार्मोन कंट्रोल करते हैं। और ये चीज़ें काफ़ी रह जाएगी पैनक्रियाज के लिए। ठीक है, वैसे तो अपने एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया होगा पैनक्रियाज का, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो तो हम कवर कर ही लें। लेट मी कवर ऑल द elementary information here. So pancreas are heterocline, and major part of pancreas is exocrine. It means that the secretion has been poured with the help of ducts, and a little part only is endocrine. अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 99% ऑफ द पार्ट ऑफ पैनक्रिया इज एक्सोक्राइन, एंड ओनली 1% पार्ट ऑफ पैनक्रिया इज एंडोक्राइन। जो पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटिंग सेल होती है, उन ग्रुप ऑफ सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिनाई। तो एसिनाई इज द ग्रुप ऑफ सेल इन पैनक्रियाज which are making enzymes, and doctor let me remember the name. एक होता है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन और एक होता है आइलेट ऑफ लैम्बरहेन। तो जो डॉक्टर लैम्बरहेन थे उन्होंने बताया था कि इन पैनक्रियाटिक एसिनाई के साथ साथ एक आइलैंड ऑफ सेल होता है, और उस आइलैंड ऑफ सेल के लिए वर्ड यूज किया आइलेट्स। लैंगरहंस, मैं नाम कैसे भूल गया ये, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो अगर मैं पैनक्रिया का लोकेशन बताऊं आपको, एग्जैक्टली जो सी शेप कर्व होता है ऑफ ड्यूडेनम, उसके अंदर होता है पैनक्रिया, अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर which is located like this. पैनक्रिया के ऊपर ये बीन शेप स्ट्रक्चर जो स्प्लीन है, और ये टेल ऑफ द पैनक्रिया होगा, बॉडी ऑफ द पैनक्रिया एंड नेक ऑफ द पैनक्रिया। ठीक है, और जो पैनक्रिया की मेजर डक्ट हमने पढ़ी है अभी, वो कौन सी होती है, जिसके अंदर सारे के सारे एक्सोक्राइन डक्ट आके ओपन होंगे, उसको बोलेंगे डक्ट ऑफ विसंग। और जो एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो होती है सेंटोरिनी। सेंटोरिनी इज नॉट डेट मच फंक्शनल। मेजर जो जूस जाएंगे वो जाएंगे आपके डक्ट ऑफ विसंग से। ठीक है बच्चों, नाउ अगर मैं पैनक्रिया का ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूं फ्रॉम द टेल रीजन, एक्चुअली टेल रीजन पे ज्यादा आइलेट ऑफ लैंगरहन दिखेंगे मुझे। इफ आई एम टेकिंग ट्रांसवर्स सेक्शन, इट वुड बी लाइक दिस, दैट देयर आर सो मेनी सेल्स which we are calling pancreatic acini, and they are located like this. So let's say there is a cluster of pancreatic acini here, another cluster of pancreatic acini is present here, another cluster of pancreatic acini is present like this. So there are so many clusters of pancreatic acini which are present here and there. ठीक है, तो सब क्लस्टर के अंदर मैं सेल नहीं बना रहा हूं। वाई आई शुड स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम ऑन दिस क्लस्टर्स, ये सारे क्लस्टर्स ही हैं। और इन क्लस्टर के अंदर कुछ के तो बना ही दो सर। इन क्लस्टर के अंदर, इन क्लस्टर्स के बीच में, मीन इन द टेल रीजन, आपको एक आइलैंड ऑफ सेल दिखता है। और जो आइलैंड ऑफ सेल है ये होती है आपकी आइलेट ऑफ लैंगरहंस, राइट। और इस आइलैंड ऑफ सेल में
जो सबसे अबंडेंट सेल होती हैं, इस आइलैंड ऑफ सेल में 4 तरह की सेल्स होती हैं टू बी एग्जैक्ट, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। जो सबसे अबंडेंट है, तो ये एक आइलैंड है जिस आइलैंड पर बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं, और इस आइलैंड का जो पॉपुलेशन है वो मेनली फीमेल डोमिनेंट ही है। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा, बी फॉर ब्यूटी। सो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, और सॉरी डेल्टा सेल एंड फोर्थ इज पीपी सेल। तो मोस्ट अबंडेंट इज बीटा सेल, और ये जो बीटा सेल होती है ये हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक मॉलिक्यूल बनाती है। दिस बीटा सेल मेक्स इंसुलिन, वो इंसुलिन फ्री ग्लूकोज, इंसुलिन जाके एक्ट करता है आपका हेपेटोसाइट के ऊपर और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। Now for the protection of these beauties on this island, the government of island and High Commission of island have appointed certain males for their security. और जब हम अल्फा वर्ड की बात करते हैं तो बेटा सुपीरियर होता है, अल्फा मेल्स आर द सुपीरियर मेल इन ए पॉपुलेशन. सो ऑन द पेरीफेरी हियर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉपुलेशन is of these cells, and these cells are known as alpha cells. So alpha cells are the one which are present at the periphery, and beta cells are the one which are present in the center. So who are the center of attraction? Beta cell, right? And alpha cell make up about 15% of the population, and alpha cell, see, alpha cell do not have the same views like beta cell, and alpha cell make a hormone which is antagonist to beta cell. Antagonist का मतलब opposite in function, और वो हार्मोन होता है ग्लूकागोन. तो अल्फा सेल बनाता है ग्लूकागोन, बीटा सेल बनाता है इंसुलिन. दोनों के प्रोडक्ट जाते हैं लीवर के अंदर, हेपेटोसाइट के अंदर, और इस रिएक्शन को मेनली कंट्रोल करते हैं. तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इंसुलिन, एंड ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज ग्लूकागोन. ठीक है, एंटागोनिस्ट इन नेचर. फिर बेटा 5% के करीब होती है डेल्टा सेल. तो D4 आई यूज्ड टू रिमेंबर ऑन दिस आइलैंड देयर आर सर्टेन डॉग्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट. एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डॉग इन योर सोसाइटी, इन योर लोकेलिटी? नो सर, दे आर फाउंड हियर एंड देयर. तो लाइक दिस the delta cells are about 5% in number, and they are scattered here and there, right? These are delta cells, and delta cell according to their nature they make a hormone which is antagonist, or which actually suppress द एक्शन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल. तो ये डेल्टा सेल है, जब ये जाके बात करना शुरू कर देती हैं बीटा सेल की तरफ तो वो डर जाती है, वो अपने सेकेशन बंद कर देती हैं. वो अल्फा सेल की तरफ बात करेंगे तो वो डर जाएंगे, अपने सेकेशन बंद कर देगी. डेल्टा सेल के सेकेशन होते हैं सोमेटोस्टेटिन, और सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है. मैंने स्टमक इंटेस्टाइन में इसको जिक्र किया है आपके सामने. तो गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइन को इनहिबिट कर रहा था, यहाँ पर ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल. तो इंसुलिन ग्लूकागोन सोमेटोस्टेटिन के कंट्रोल में होती है, इनहिबिटरी हार्मोन. और 15% cells of this population whose location is not that much specific, so they are the one which are making boundaries between alpha cell and beta cell, and 15% of the population of these cells are PP cell. Let's say these are the PP cell, or let's call it F cell. PP stand for pancreatic polypeptide, और एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. पैनक्रियाटिक
पॉलीपेप्टाइड, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ऐड करता है इन स्ट्रक्चर पे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स हियर? पैनक्रियाटिक एसिनाई, और पैनक्रियाटिक एसिनाई की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। सो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एसिनाई। तो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैम होती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? एंडोक्राइन सेल ऑफ द पैनक्रियाज। और वो किसके बीच में होता है ये आइलैंड? चारों तरफ कहाँ का ये पॉपुलेशन है? देयर इज द पॉपुलेशन ऑफ so many cluster of cell which are making digestive juice and we call that pancreatic acini here. Done up to here. अब हम तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमें एंडोक्राइन सेल से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें ये पढ़ना है, देखो ये जो पैनक्रियाटिक एसिनी है इनके सिक्रेशन सबके वाया डक्ट जाते हैं और इनके सिक्रेशन होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो हमें तो ये पढ़ना है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है और पैनक्रियाटिक जूस को हम क्यों मेजर डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। स्टमक को मेजर, गैस्ट्रिक जूस को मेजर डाइजेस्टिव जूस नहीं कहा। इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंट्रिकस जिसके बारे में ऐसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको मेजर डाइजेस्टिव जूस नहीं कहा, पैनक्रियाटिक जूस को ही क्यों बोला है। तो आई विल बी टेलिंग यू दैट जो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं दे आर पोटेंशियली मोर पावरफुल और दे आर मोर पोटेंट इन डाइजेशन देन अदर एंजाइम्स and they are having much varieties। तो मेजर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी यहीं से रिलीज होगा, जो मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो भी यहीं से रिलीज होंगे, मेजर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी यहीं से रिलीज होंगे, मेजर न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी यहीं से रिलीज होंगे। ठीक है, तो बस कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस बता देता हूँ एंड देन आई विल बी फिनिशिंग दैट क्लास। ठीक है, ऑलराइट। So composition of digestive juice, composition of digestive juice, hey, composition of pancreatic juice, no digestive juice, let's call that pancreatic juice। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। डेली तकरीबन 500 ml के करीब, 500 to 800 ml के करीब आप बाइल बनाते हैं। अगर पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं तो वो तकरीबन आपका 1.5 लीटर से 2 लीटर के करीब होता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस का भी जो pH होता है वो अल्कलाइन ही होता है, इन रेंज ऑफ 7.4 to 7.6 एंड डेली 1.5 लीटर to 2 लीटर। ओके, क्या क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में? शुरुआत करते हैं मेजर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम होता है अमाइलोप्सिन। अमाइलोप्सिन इज रेफर्ड एज टू पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड दिस इज मेजर अमाइलेज। भाई स्टमक के अंदर तो कोई अमाइलेज नहीं आया था और जो स्लाइवरी अमाइलेज था उसका नाम था आपका टाइलिन। तो कौन सा मेजर अमाइलेज होता है बॉडी में? तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज इज द मेजर अमाइलेज। और ये भी आपका टाइलिन के जैसा ही करता है, बस अलग पीएच पे करेगा। ठीक है, ये 70% ऑफ स्टार्च को डाइजेशन करेगा, 30% को ही करता है। और एंड प्रोडक्ट जो आएंगे वो तो इंटेस्टाइनल जूस से आएंगे, राइट। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की अगर बात करूं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीएज जिसको कहते हैं डाइजेस्टिंग एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है एंट्रोकाइनेज जो आपका इंटेस्टाइनल जूस से कल पढ़ा दिया था वो। ठीक है, और काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन। ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बता दूंगा मैं आपको। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। आपके पास ये चेन ऑफ प्रोटीन है,
ये उसका एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है और ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स है वो आपस में एक दूसरे से बाइंड कर रही होगी विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब कुछ एंजाइम होते हैं जो टर्मिनल अमाइनो एसिड को रिमूव करेंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला अमाइनो एसिड रिमूव हो जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला अमाइनो एसिड रिमूव हो जाएगा। तो जो टर्मिनल अमाइनो एसिड को रिमूव करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। और कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा विद इन द चेन क्या तो इसको या इसको या इसको या इसको डाइजेस्ट करेंगे, उनको बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है बेटा। अब जो टर्मिनल के तरफ एक्ट करता है उसका नाम होता है अमाइनो पेप्टाइडेज और ये इंटेस्टाइनल जूस से आता है। और जो सी टर्मिनल की तरफ एक्ट करता है उसका नाम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और ये आपका पैनकेटिक जूस में है। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अभी इनएक्टिव है। तो जब मैं बात करूंगा पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन की, ये सारे कैसे होते हैं एंडोपेप्टाइडेज। और मैं बात करूंगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, तो वो कैसे होंगे एक्सोपेप्टाइडेज। फिर आता है बेटा फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अगर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करूं तो मेजर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है हमारे बॉडी में स्ट्रिएप्सिन, जो पैनकेटिक जूस से आ रहा है। और स्ट्रिएप्सिन के 3 कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली। कंपोनेंट एक होता है आपके पास पैनकेटिक लाइपेज, एक होता है आपके पास कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और एक होता है आपके पास फोस्फोलाइपेज। तो ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, या कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करेगा, या फोस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। इस सारे एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को ये बोलते हैं स्ट्रिएप्सिन। तो मेजर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम और मेजर लाइपेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या बोलते हैं लाइपेज। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम एमाइलेज। ठीक है बच्चों। और जब न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करूं मैं, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो पैनकेटिक जूस में 2 न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होते हैं। एक का नाम होता है डीएनएज, जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और दूसरे का नाम होता है आरएनएज, जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। सो डीएनएज और आरएनएज आर 2 न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन पैनकेटिक जूस। तो जो पैनकेटिक जूस है वो डक्ट ऑफ विसंग से आता है हेपेटोपैनकेटिक एम्पुला में। पैनकेटिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है आपका CCK-PZ और एसिटाइल कोलिन, और सिक्रेटिन पैनकेटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट ऐड करता है। ये सब ना हार्मोन वाले पार्ट में मैंने कवर कर लिया है। रेगुलेशन ऑफ हार्मोन कंट्रोल देख लेना आप, ऑफ GIT, वो लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है, अपलोडेड एक्चुअली। Secretin add the bicarbonate which help in maintenance of this pH. Then CCK-PZ as well as acetylcholine, our parasympathetic neurotransmitter that initiate the release, they initiate the production of pancreatic juice. ठीक है. And pancreatic juice is referred as to major digestive enzyme due to the presence of these enzymes. Major digestive juice due to the presence of these enzymes. सभी थक गए हैं. Is that clear? I'm recording so much nowadays ना. Anyways, यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अब आपका एक लेक्चर और बचता है, डेट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, और उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं डेट इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, देन रेगुलेशन बाय हार्मोन्स, वो सारे ही अपलोडेड हैं। और एक लेक्चर और भी अपलोड करना बाकी है। आई विल बी डूइंग दैट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, दैट वुड बी ऑफ विटामिन्स। So this is all for today. I hope things are clear. If there is any doubt, you can ask me. Take care, stay safe. See you in the evening with the transportation of gases, right? In the breathing chapter. Till then, class is over. Thank you. Take care.